یا پلیز تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں گے. اور میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کو جو آپ کے پاس ہیں بہنیں بھائی آپ کو گڈ مارننگ بولیے ایک دوسرے کو اور خداوند کے نام کو جلال دیجیے, خداوند کی تعریف کیجیے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. آپ سب جانتے ہیں ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن وزڈم, الہی حکمت الہی دانش. اس کا جو آج کا سرمن ہوگا لارڈس ڈے اینڈ مائنڈ, خداوند کا دن اور عقل کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. اور میں چاہوں گا اس سرمن کے ذریعے سے خدا آپ کو بڑا بلیسفل کرے گا. میں چاہوں گا میرے ساتھ ریفرنس نکالیے خداوند کے کلام میں سے. آئیے دوسرا تسلیکیوں دوسرا باب اس کی پہلی آیت, خداوند کے کلام میں سے دوسرا تسلیکیوں دوسرا باب اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں یہ لکھا, سنیے. دوسرا تسلیکیوں دوسرا باب اس کی پہلی آیت. اے بھائیو, ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو, یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا, تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اور ایک ریفرنس میں ساتھ نکالی خداوند کے کلام سے مکاشفہ 16 باب اس کی 15ویں آیت, خداوند کے کلام میں سے سنیے. مکاشفہ 16 باب 15ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. دیکھ میں چور کی طرح آتا ہوں, مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. ایک ریفرنس میں چاہوں گا اور نکالیے میرے ساتھ. پہلا تسلیکیوں 5واں باب اور اس کی 30 آیت خداوند کے کلام میں سے. پہلا تسلیکیوں 5واں باب اس کی 30 آیت. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں, اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. میں چاہوں گا ایک اور ریفرنس زیفونیا کی کتاب ہے پرانے نامہ کے اندر, سفینیا کی کتاب نکالی ہے, اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. سفینیا کی کتاب پہلا باب 14ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے سفینیا نکالیا سفینیا پہلا باب اس کی 14ویں آیت. پڑھیے میرے ساتھ. خداوند کا روز عظیم قریب ہے, ہاں وہ نزدیک آ گیا, وہ آ پہنچا. سنو, خداوند کے دن کا شور زبردست, آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا, اور وہ دن قہر کا دن ہے اور دکھ اور رنج کا دن, ویرانی اور خرابی کا دن, تاریکی اور اداسی کا دن, ابر اور تیرگی کا دن. اور میں چاہوں گا اسی کتاب کی دوسرے باب کے اندر اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے, دوسرا باب پہلی آیت. اے بے حیا قوم جمع ہو اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو, اور وہ دن بھینس کی مانند جاتا رہے, اور خداوند کا قہر شدت تم پر نازل ہو, اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے. خداوند کی پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائے. میں چاہوں گا پاک روح کے لیے, روح قدس کے لیے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو جان دیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. بہت کم تالیاں, زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے, پاک روح کے لیے, ہولی اسپرٹ کے لیے. خداوند کا دن اور عقل, لارڈس ڈے اینڈ مائنڈ. تو ڈیوائن وزڈم کا یہ سرمن خداوند کے کلام میں سے دینے جا رہا ہوں. خداوند کا دن,
तो लॉर्ड्स डे खुदावंद का दिन के ताल्लुक से, और हमारी मरकजी आयत जो है दानियल की किताब 12वां बाब उसकी 4थी आयत कि बथेरे तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश क्या हो जाएगी, अफजू हो जाएगी, दानिश बढ़ेगी। अफजू का मतलब बढ़ना, और ये दानिश जो है ये बढ़ती चली जाए, ये दानिश कम ना हो, और दानिश का लेवल हमारा जो ग्राफ है ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये दानिश, दनाई, हिकमत, विजडम, खिल्द, अंडरस्टैंडिंग ये कहाँ से मिलती है? ये खुदा के कलाम को सुनने से मिलती है। दूसरा, पहली बात, खुदा के कलाम को सुनने से आपको दनाई, हिकमत, विजडम आएगी, और अल्लाही हिकमत आएगी, आसमानी हिकमत आ जाएगी। जब आसमानी आ जाएगी तो दुनिया की हिकमत की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ये होली स्पिरिट, रूह कुदस आपको बख्श देता है, आपको विजडम, दनाई, दानिश, ज़हन खुल जाता है, घरों को मैनेज करना आ जाता है, कारोबार को मैनेज करना आ जाता है। जब दनाई ना हो, हिकमत, विजडम की कमी होगी तो फिर घराने चल नहीं पाते, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं पाती, क्योंकि बीवी को हस्बैंड डील करना नहीं आता, या हस्बैंड को बीवी को डील करना नहीं आता, या बच्चों को डील नहीं कर पाते, इसलिए घराने बर्बाद हो जाते। इसलिए भाइयों, खुदा से हिकमत मांगे। सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी। सुलेमान ने कहा, सुलेमान बादशाह ने, दाऊद का बेटा था, उसे कहा, खुदावंदा मुझे बाहर अंदर आने बाहर जाने का शौर नहीं है, दनाई नहीं है, दानिश नहीं है मेरे पास, लिहाजा मुझे हिकमत बख्श दे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, तूने बहुत अच्छी चीज मांगी, तूने दुश्मन की जान नहीं मांगी, तूने दौलत का सवाल नहीं किया, तूने क्या मांगी? हिकमत मांगी, विजडम मांगी, दनाई मांगी। जा, तुझे दुश्मन की जान भी दी, तुझे दौलत भी दी, तुझे शौहरत भी दी, तेरे जैसी ऐसी हिकमत किसी के पास नहीं होगी। आमीन। तो भाइयों, ये मांगने से मिलती है। सुलेमान ने मांगी, मांगा करे खुदा से, कि खुदा मुझे दनाई दे, घर को मैनेज करूं, बिजनेस को मैनेज करूं, जॉब को मैनेज करूं। तो जॉब से क्यों निकाल दिए जाते हैं, जॉब से क्यों हटा दिए जाते हैं? क्योंकि दनाई नहीं है, दानिश नहीं है, हिकमत नहीं है, विजडम की कमी है। तो मैंने बताया, दुनिया की विजडम दुनिया के इल्म को हासिल करने से आती है, मगर खुदा की विजडम जो है वो खुदा का रूह देता है, और खुदा के कलाम के जरिए से हमें दनाई आ जाती है। अगर खुदा की दनाई मिल गई, खुदा की दनाई अगर हमारे पास आ गई, तो दुनिया की दनाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। तो दनाई बढ़नी चाहिए। तो ये दानिश, दनाई रोज रोज बढ़े, जैसे खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है, लॉर्ड्स माइंड की इल्म, तालीम मेरे और आपके पास हो खुदावंद का दिन के ताल्लुक से। अब देखिए, खुदावंद का दिन जो है, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, वो खुदावंद का दिन, इतवार का दिन। इतवार के दिन यीशु मसीह क्या हुआ? लॉर्ड्स डे है खुदावंद का। और खुदावंद के कलाम के अंदर ये इतवार का जो दिन है, ये भी हम इबादत करते हैं, ये भी खुदावंद का दिन है। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, खुदावंद आने वाला है दोबारा, क्या कर, दूसरी आमद पर यीशु मसीह क्या करने आ रहा है? वापस हमें लेने के लिए। तो भाइयों, ये भी दनाई है, ये विजडम है। कोई अक्ल पकड़ ले, दनाई आ जाए, कोई इल्म आ जाए, आपको ज़हन खुल जाए, ताकि आप आसमानी हिकमत को हासिल कर जाए। तो भाई, दनाई ये है कि खुदावंद जो है आने वाला है। खुदावंद क्या है? आने वाला है। पहले खुदावंद के दिन यीशु मसीह आया, और खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, तो जी उठने के बाद 40 दिन तक वो लिखा है, शागिर्दों के बीच में, लोगों के बीच में आसमान की बादशाह की मनादी करता रहा। और जब आसमान की बादशाह की मनादी दुनिया के अंदर करता रहा, सुनिए, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर लिखा है, सूद फरमा गया, यानी आसमानों पर चला गया। तो 40 दिन के बाद जो ईद होती है, वो भाई, वो यीशु मसीह के यानी आसमान पर जाने की ईद। और ज़बूर 39 के अंदर लिखा है कि वो सूद फरमा गया। सूद का मतलब आसमानों पर चला गया। इट इज, यानी कि ये ईद है। तो ये ईद भाई सेलिब्रेट होती है दुनिया के। यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमानों पर चला गया, ठीक है। और फिर वादा भी करके गया शागिर्दों को कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, मददगार फराहम करूंगा। और फिर 10 दिन के बाद यीशु मसीह ने आसमान से रूह कुदस को नाज़िल किया। और ये जो 40 दिन थे, 40 दिन के बाद लिखा है, शागिर्दों को साथ लिया। बहुत सारे शागिर्द थे, और लिखा पहाड़ पर जा रहे हैं। तो अब देखिए, पहाड़ के ऊपर लिखा है कि वो शागिर्दों के साथ यीशु मसीह जा रहा है, पहाड़ के ऊपर खड़े हो गया, और लिखा है, देखते ही देखते लिखा है, यीशु मसीह आसमानों पर
उठा लिया गया। अब शागिर्द ऐसे ही देख रहे हैं सारे, तो लिखा 2 फरिश्ते वहां पर सफेद पोशाक पहने आ गए। क्या कहने लगे, ए गलीली मर्दों, क्या देखते हो? जैसे तुम आसमान पर यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा है तुमने, इसी तरह आसमान से वापस आते हुए देखोगे। आइए खुदावंद के लिए हालेलुया। तुम घबराना जाना, परेशान ना हो जाना, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था कि बथेरे आएंगे, झूठे नबी अपने आप को क्राइस्ट कहेंगे, झूठे क्राइस्ट आ जाएंगे, झूठे मसीह आ जाएंगे, एंटी क्राइस्ट आ जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा घबराना जाना। फरिश्तों ने क्या कहा, घबराना जाना। तो आप देखिए कि घबराना जाना, यीशु मसीह ने क्या कहा, घबरा, बोलिए जरा। तो यीशु मसीह ने कहा कि घबराना जाना। तो फरिश्तों ने भी क्या कहा बोला, फरिश्तों ने कहा गलीली मर्दों, जैसे तुम यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह वापस आते भी देखोगे। बोलिए आमीन। तो आप भाइयों, हमें मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम मसीह, अब यीशु मसीह दूसरी आमद पर आएगा और हमें क्या करेगा, आसमानों पर ले जाएगा। तो लिखा है कि हमें ये जो है याद रखना है कि मसीह यीशु आने वाला है और 2000 साल गुजर गए हैं, यीशु मसीह आसमानों पर गया हुआ है, अब हमें लेने के लिए आएगा। बोलिए आमीन। लिखा है घबरा ना हो जाना। उससे पहले, मसीह के आने से पहले लिखा है झूठा नबी आएगा, बरगश्तगी आएगी, लोग गुमराह हो जाएंगे, एंटी क्राइस्ट मुखालफे मसीह आएगा। ये नॉलेज हो, ये इल्म हो, ये दनाई दानिश हो आपको, ताकि आप, क्योंकि वो दुख देगा कलीसिया को। लिखा बड़े बड़े ईमानदार, लिखा गुमराह हो जाएंगे, वो गुमराह कर देगा, बरगश्तगी के अंदर ले आएगा। और खुदावंद के कलाम लिखा है घबराना जाना। और कहा गया, फरिश्तों ने क्या पैगाम दिया, ए गलीली मर्दों, जैसे यीशु मसीह आसमानों पर तुम्हारी आंखों के सामने उठा लिया गया, अब आसमानों से आएगा। मगर बथेरे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें यह कहेंगे कि यीशु मसीह क्या है, बियाबान के अंदर है। यीशु मसीह कहां पे है, कोठरियों के अंदर है। इनर चैम्बर इंग्लिश के अंदर लफ्ज है, इनर चैम्बर के अंदर, यानी घरों के अंदर है, फलां जगह पर है, बियाबानों के अंदर है। तो लिखा, ये ना समझ लेना कि यीशु मसीह जो है बियाबानों के अंदर है तो भागकर यीशु मसीह को देखने के लिए चले जाओ या उसे फॉलो करो, वो झूठा नबी होगा। तो लिखा बरगश्तगी उस वक्त भी बहुत होगी, तो आज भी बरगश्तगी है, मसीह से लोग दूर है, खुदा के कलाम को नहीं सुनते, सच्चाई से वाकिफ नहीं है। तो लिखा है मसीह आने वाला है, गलीली मर्दों, जैसे मसीह को तुमने आसमान पर जाते हुए देखा, अब दोबारा दूसरी आमद पर हमें लेने के लिए आएगा। तो इंतजार करना। तो उससे पहले लिखा है कि मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट आएगा, जो अपने आप को मसीह कहलाएगा, जो अपने आप को, लिखा है झूठा नबी होगा, झूठ बोलने वाला होगा, फरेब देने वाला होगा, गुमराह करने वाले होगा। तो घबराना जाना। कोई तुमसे कहे कि मसीह बियाबान के अंदर, तो ये ना यकीन ना कर लेना। या कोई कहे कि इन्हें चैम्बर के अंदर है, घरों के अंदर है, तो आप उसका यकीन, ये गुमराह कर रहा है वो। तुम्हारा यीशु आसमानों पर ही गया है उठता हुआ, और आसमानों से ही वापस आएगा। मगर 18 के अंदर, 2018 का जो सन स्टार्ट हुआ, और 2018 की 2018 2018-14 के अंदर जो है वो एक ग्रुप वहां पर नजर आया अमेरिका के अंदर। उन्होंने, वो गुमराह हो गए। गुमराह किस तरह हुए, ये यहोवा विटनेस वाले जो है, ये नौजवानों का ग्रुप था, और 18 के अंदर इनका ग्रुप स्टार्ट हुआ, और 1814 के अंदर इन्होंने कहा कि मसीह आ गया है, और मसीह आ गया है, और आसमान की बादशाही जो है स्टार्ट हो गई है। तो आप देखें, अभी भी अगर यहोवा विटनेस वाले आपसे मिलते हैं तो वो किताबें आपको दिखाते हैं, उसमें 1000 साल बादशाही, यानी उसमें बादशाही का होगा, तो कहते हैं बादशाही स्टार्ट है अभी, यीशु मसीह आ गया हुआ है। हालांकि मसीह नहीं आया, आप सबको पता है ना, मसीह नहीं आया, मगर वो कहते हैं कि ये कहते हैं मसीह आ गया हुआ है, उसकी आमद पोशीदा आ चुकी है, दूसरी आमद में वो आ गया है, अब उसकी बादशाही का आगाज है। तो वो अपने चर्च का नाम, यानी चर्च नहीं कहते ये इबादतगाहों को, वो क्या कहते हैं, कहते हैं किंगडम होम कहते हैं। तो आप देखिए वो दुनिया उनके पीछे चल रही है यहोवा विटनेस के अंदर। तो इतनी बड़ी बिद्दत उन्होंने फैला रखी है। बिद्दत ये थी कि नॉलेज की कमी की वजह से, क्योंकि
1814 के अंदर पहली जंग अजीम हुई, तो सारी दुनिया की जंगें आपस में शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने समझा कि ये जंगें स्टार्ट हो गई हैं तो अब मसीह आ गया है, तो उन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिया कि मसीह आ गया। तो आज तक वो कहते हैं कि मसीह की पोशीदा आमद आ चुकी है और वो मतलब बादशाही के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो जो है वो अमेरिका के अंदर ये ग्रुप था, मगर आज तो भाइयों पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी एक ग्रुप पिछले सालों के अंदर एक आया। सुनिए, उडनी मिशन एक आई, उडनी मिशन, और उनका एक प्रॉफिट था, उसने अनाउंसमेंट किया अपने लोगों को, चर्च के लोगों को जो उसके साथ थे, उसने अनाउंस कर दिया कि मसीह जो है फलां दिन आएगा, तो आपने दरख्तों पे चढ़ जाना, दरख्तों से चढ़कर वहां से उड़कर हम आसमानों पर चले जाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बिद्दत है। और उन्होंने वैसा ही किया, अपने घर बार को बेचा और पैसे पकड़ के दरख्तों पे चढ़ गए और इंतजार करने लगे। चौथा पांचवा 5 दिन हो गए उनको, और लोगों ने कहा भाई मसीह ऐसे थोड़ा आएगा, नीचे आ जाए। उनको बड़ी मुश्किल से लोगों ने नीचे उतारा। देखिए ये बिद्दत है, मसीह आने वाला है। उससे पहले लिखा भरगश्तगी आएगी, उससे पहले लिखा एंटी क्राइस्ट आएगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि ये बिद्दतें दुनिया के अंदर भाइयों बहुत है। तो लिखा तुम गुमराह ना हो जाना, तुम गुमराह ना हो जाना, तुम परेशान ना हो जाना। बहुत सारे झूठे नबी आएंगे, प्रॉफिट आएंगे, कहेंगे कि मसीह बियाबान के अंदर है, मसीह फलां घर के अंदर है, तुम यकीन ना करना। ये हिकमत है, दनाई है। तो दनाई होगी, हिकमत होगी, कलाम को सुना होगा तभी आपको पता होगा ना। तो जब पता ही नहीं होगा तो फौरन गुमराह हो जाएंगे आप। तो जैसे मैं आज कलाम सुना रहा हूँ तो वो वक्त आ जाए, ये वक्त नजदीक है, मसीह भाई करीब है, आने वाला है। क्योंकि ये देखिए जंगों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो वो तो उन्होंने पहली जंग अजीम के अंदर ही कह दिया, हालांकि उसके बाद दूसरी जंग अजीम आई, अब लास्ट तीसरी जंग अजीम आनी है। तो अब देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जंगें छिड़ना शुरू हो गई हैं। अभी इजराइल और इराक की जंग स्टार्ट हो गई, ईरान की, इराक, हाँ जी। और फिर अभी पिछले दिनों के अंदर आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की स्टार्ट होगी थोड़े दिन के लिए, तो फिर रुक गई। तो इस तरह पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला स्टार्ट होने वाला है। और हमने जो तलीमी तौर पर सीख रहे हैं कि ये भाई मूर्ति वाली जो दानियल को जो नबूकदनेस्सर बादशाह को नजर आई, दानियल ने उसकी तबीर की कि ये बादशाहियों भाइयों, ये सिलसिला 7 सर जो 7 सर है, ये हुकूमतें भाइयों सुपर पावर दुनिया की। तो जैसे मिस्र की, असूर की, बाबल की, और मादी फारसी की, और उसके बाद यूनान की, और उसके बाद रोम की, उसके बाद रिवाइज रोम। आप देखिए, और भाइयों ये जो सिलसिले हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं। ये नॉलेज होगा तभी आप समझ सकेंगे कि वो झूठा नबी कब आएगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये जो झूठा नबी है ये इजराइल के अंदर आ बैठेगा, लिखा है हैकल के अंदर आकर बैठ जाएगा, और हैकल के अंदर आकर कहेगा कि मैं क्या हूं, मैं खुदा हूं, मैं क्या हूं, अल्लाह हूं, मैं क्राइस्ट हूं। तो बनी इजराइल के जब वो अपना वहां पर आएगा तो वो फौरन समझ जाएंगे, बनी इजराइल कहेंगे और यही मसीह है फौरन, क्योंकि वो इजराइल के अंदर आकर झूठा नबी कहेगा कि मैं क्या हूं, मसीह हूं। क्योंकि वो 7 साल का अरसा गुजरेगा, उसे दिया गया है 3.5 साल, तो वो इजराइल को बहुत सहूलतें देगा, हर तरह की सूरत बख्शेगा। और जब लास्ट 3.5 साल होंगे, रह जाएंगे, तब वो उन पर जुल्म करेगा, हजार सानी उन पर लाएगा, उन पर जुल्म करेगा, उनको मारेगा, उनको कहेगा कि मेरी पूजा करो, मैं खुदा हूं। क्योंकि दुनिया की सारी सुपर पावर उस एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएंगी, दुनिया की सारी फौजें उसके साथ मिल जाएंगी, दुनिया का हर बंदा उसके साथ, उनकी फौज आर्मी के साथ होगा। तो वो कहेगा मैं तो भाई खुदा ही बन गया, मैं क्राइस्ट हूँ, मैं मसीह हूँ, मेरी वर्शिप करो, मेरी सताइश करो। और वो जब बनी इस्राएल को सताने लगेगा और हैकल में बैठकर क्या करेगा, अपनी वर्शिप करवाना शुरू करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सूअर की कुर्बानी गुजारेगा। और जैसे यूनान की हुकूमत थी, उसके अंदर सिकंदर आजम का एक था बंदा जो उसका लीडर था, तो वो उसका नाम था एंटीओखस। तो उसकी हुकूमत के अंदर छोटा सिंह उसे कहा जाता है। उसने क्या किया था, इजराइल के साथ सुलह का अहद बांधा, और फिर उसके साथ सुलह के अहद बांध कर फिर हैकल के अंदर गया और सूअर की कुर्बानी गुजारी, और फिर वो मतलब उन पर जुल्म करने लगा इजराइल को। तो कहने का मतलब इसी तरह एंटी क्राइस्ट करेगा, वो हैकल में आकर बैठ जाएगा। और
امن کا، جیسے جنگیں چھڑ رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کیا کرے گا؟ عہد باندھے گا اور سلامتی کا عہد باندھے گا. کہے گا کیا کہے گا؟ کہ سلامتی پیدا کرے گا، گلوبل پیس پر وہ بولے گا. تو جب گلوبل پیس پہ بولے گا، دنیا کے اندر سلامتی لائے گا، ان کی صلح کروا دے گا، تو پھر وہ ابھی ہیکل بنانا چاہ رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہوگا ہیکل کا سامان اسرائیل نے سارا اکٹھا کر لیا. تو کیونکہ دیوار گریا کے پاس وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں اسرائیل، اور آگے ان کی جو ہے وہ آگے وہ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جگہ بھائی وہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن لی نہیں جا رہی. تو اینٹی کرائسٹ آ کر وہ جگہ بھائی ان کی صلح کروائے گا اور پھر دے گا. لیکن ابھی ان کا سامان جو ہے سارا انہوں نے جو اکٹھا کر لیا ہیکل کا. اس کے اندر جو انہوں نے جو ہے وہ پیتل کا مذبح، پیتل کا ہاؤس، اور یہ جو ہر چیز جو ہے انہوں نے اکٹھا کر لیا. اور ان کو یہ ہاں جی، ان کو یو ایس اے کے اندر لال بچیاں بھی مل گئی ہے، کیونکہ لال بچیا کے بغیر وہ یہ سسٹم سٹارٹ نہیں کر سکتے. لال بچیا اس کا مطلب ہوتا ہے لال بچیا کا، کیونکہ وہ راکھ لے کر وہ نپاکوں پر چھڑکتے تھے تو وہ جگہ پاک، وہ لوگ پاک کرتے تھے ان کو. ٹھیک ہے، یہ ان کے اس لیے امریکہ کے اندر ان کو مل گئی ہے، مگر کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو لہٰذا جگہ ہوگی تو تبھی وہ سسٹم چلائیں گے. تو ہیکل کو بنانا چاہ رہے ہیں. تو مگر یسوع مسیح نے کہا یہ ہیکل کا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا. یعنی اب ہیکل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیکل مسیح یسوع نے بنا لی ہے، اور وہ ہیکل میں اور آپ ہیں. آئیے اس بات کے لیے ضرورت تعلیم کی. ہاللیلویا. تو اس نے لہو سے ہیکل بنا دیا ہے، تو ہیکل میں اور آپ ہیں. تو یہ بھائیوں لہٰذا وہ اینٹی کرائسٹ جب آئے گا تو وہ ایک تو ہیکل کے اندر بیٹھے گا جو بنی ہوگی بلڈنگ، ایک ہیکل میں اور آپ ہیں ہمیں بھی تنگ کرے گا، وہ کلیسیا کو تنگ کرنے کے لیے آئے گا. تو کہنے کا مقصد پہلے یہ لکھا ہے کہ فرزند آئے گا، جھوٹا نبی آئے گا، اور اس کے بعد مسیح آئے گا. اور خدا کے کلام لکھا ہے ہر مجدون کے اندر، پھر لکھا ہے فورسز کے اندر یسوع مسیح آسمانوں سے آئے گا. اس سے پہلے بنی اسرائیل پر لکھا روح سوزا بھیجا جائے گا. وہ معصوم آئیں گے، جب وہ ظلم کرے گا ان پر تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا یہ کرائسٹ نہیں ہے، مسیح نہیں ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا آسمان پر جانے سے پہلے؟ جب آسمانوں پر چلا گیا 2 فرشتے آئے تو کیا کہا؟ اے گلیلی مردو، جیسے تم نے آسمان پر یسوع مسیح کو جاتے دیکھا ہے ویسے ہی واپس آتے دیکھو گے. اور متی کی انجیل 24 باب نے سنیے کیا جملہ لکھا ہے کہ جیسے پورب سے پچھم تک بجلی چمکتی ہے، کودتی ہے، ویسے ہی مسیح کا آنا ہوگا. آئیے اس بات کے ذریعے ہاللیلویا. آسمانوں پر ہماری نظر ہو، زمین پر کوئی کہے کہ مسیح فلاں جگہ پہ ہے تو یقین نہ کرنا. کوٹھیوں کے اندر ہے، بیابانوں کے اندر ہے تو یقین نہ، کیونکہ اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح جو شخص ہوگا سپر پاور دنیا کی اس کے ساتھ ہوگی، وہ بھی کرائسٹ کی نقل کرتا ہے. جیسے یسوع مسیح بیابان کے اندر گیا نا 40 دن تک، وہ بھی بیابان کے اندر جائے گا تاکہ اس سے مانے لوگ، اسرائیل کے لوگ مانے کہ یہ کرائسٹ ہے. تو وہ نقل کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر لکھا کہ ساری فورسز کے ساتھ آ کر لکھا کرائسٹ آسمانوں سے آئے گا. اسرائیل جب روئیں گے یسوع مسیح کو کہ یسوع مسیح تم آ جا، تو پھر خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح لکھا ہے آسمانوں سے آئے گا. اور لکھا ہے ہر مجدون کی جنگ، ہر مجدون کے علاقہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ اور اس کی فورسز کو مارے گا. آمین. اور لکھا ہے اس پر غالب آئے گا. بولیے آمین. تو لکھا ہے یہ ایک دن کی جنگ ہوگی. اور خداوند کے کلام لکھا ہے اپنی منہ کی، لکھا اپنی کیا لکھا ہے لفظ، منہ کی پھونک سے وہ بھائیو، یعنی اس کی زبان جو ہے، منہ جو ہے، وہاں سے تلواریں ہیں بھائیو مسیح کی. لکھا ہے اپنے منہ کی پھونک سے ان کو ہلاک کر دے گا اینٹی کرائسٹ کو، مخالف مسیح کو. لہذا حکمت افزو ہو، علم ہو، کلام کا علم ہو، پوری تعلیم میرے اور آپ کے پاس ہو تاکہ ہم بھائیو آنے والے دنوں کے اندر مضبوط ہو سکے، ہمیں کوئی گمراہ نہ کر پائے. وہ جب لکھا جھوٹا نبی آئے گا، گمراہ کرنے والا آئے گا، تیرگی آئے گا، تو ہمیں کوئی گمراہ کرنے والا نہ ہو. لیکن وہ اینٹی کرائسٹ کہے گا کہ آج کا دن جو ہے وہ پیس کا دن ہے. کس چیز کا دن ہے؟ پیس کا دن ہے. اور پھر خداوند کے کلام لکھا ہے وہ اوقات کو بدلے گا. اوقات کہتے ہیں ٹائم کو، دنوں کو بدلے گا. پھر لکھا شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، کلام کو بدلنے کی کوشش کرے گا. سنیے آخری بات، لکھا اوقات کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اوقات یعنی وقتوں کو، ٹائموں کو وہ کیا کرے گا؟ دنوں کو چینج کرے گا. جیسے دنیا کے اندر دن منائے جا رہے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، اور آج فادر ڈے ہے نا، تو فادروں کے لیے ضرورت تک تالی تو بجا رہے ہیں ابھی سے.
शुक्रिया, थैंक यू। तो कहने का मतलब सुन लीजिए, तो फादर डे जैसे मदर डे और फिर डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, अर्थ डे दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, नर्स डे की ख्याल है, नर्स डे भी मनाया जाता है, तो ये बड़ा ऑनर, टीचर डे मनाया जाता है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये भाइयों अभी से उन्होंने देखें अपने कंट्रोल में कर लिए दिन। इन दिनों को भाइयों जैसे यीशु मसीह ने, जैसे खुदावंद ने लिखा है 7 दिनों के अंदर जमीन आसमान बनाए, तो ये भाइयों दिन जो है ये शैतान के हवाले हो रहे हैं ये दिनों के अंदर। आप देखिए कि हम यहाँ पर पाकरू के मानते हैं भाइयों, आम दिनों को नहीं सेलिब्रेट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, जैसे मदर डे है, फादर डे, ये दिन तो माँ बाप तो आपके पास सदा रहेंगे, तो भैया उनको उनकी इज्जत भी करें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करें। और यहाँ पर भैया खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो औकातों को, वक्तों को अपने हाथ में करेगा, शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और ये जो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपने हाथों में करेगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आसमानी बाप जो हमारा खुदा है, ये औकातों को शैतान चेंज करने की कोशिश करेगा। तो हमें भाइयों समझना इन बातों को, ये थोड़ी तलीम मुश्किल है जो मैं लफ्ज़ कहने लगा, जुमला कहने लगा हूँ, उसको ख़त्म करते हैं। तो ये जो दिन है ये आज भाइयों शैतान अपने हवाले कर रहा है। तो कैसे कर रहा है भला? क्योंकि जैसे हमारा पिछले संडे का जो था वो होली स्पिरिट का दिन था, तो उस दिन को कोई कहे कि वो आप मदर डे या नर्स डे या टीचर डे मनाएं, तो आप मनाएंगे, टीचर डे लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन होली स्पिरिट की कलाम की आपको शोर नजर नहीं आएगा घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, चर्चेस के अंदर। तो आप देखिए कि होली स्पिरिट का दिन होगा, मगर वो तलीम वहाँ पर टीचर डे या नर्स डे की वहाँ पर बयान की जा रही होगी। बहुत सारे चर्चेस के अंदर ऐसे ही हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा, क्या ख्याल है? तो आप देखिए इन दिनों को, औकातों को वो क्या करेगा, अपने कंट्रोल में करेगा। तो होली स्पिरिट का दिन होगा, तो उसी दिन क्या होगा, नर्स डे वो मना रहे होंगे दुनिया के लोग, या कोई और दिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या मदर डे भी मना रहे होंगे, तो मनाइए आपको, लेकिन आपको चर्च के अंदर खुदा की इबादत करनी है। आमीन। खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट करना है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है खुदावंद का दिन, यीशु मसीह वो भी जब जी उठा तो इतवार के दिन जी उठा, और वो खुदावंद का दिन है। इतवार का दिन किसका है? खुदावंद का दिन है। तो लिखा है कि तुम्हारी अकल जो है वो दफ्तर परेशान ना हो जाए कि मसीह फलां जगह पे, मसीह फलां जगह पे है। अगली मर्दो, जैसे तुमने मसीह को आसमानों पर जाते देखा है, वैसे ही वो दोबारा मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। अगर कोई तुम्हें कहे कि वो बियाबानों के अंदर है, घरों के अंदर है, फलां जगह पर, तो यकीन ना करना। मसीह से पहले वो लिखे एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह, गुमराह करने वाला आएगा, तो उसका यकीन ना करना। जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक कूदती है, इसी तरह मसीह का आसमानों पर आना होगा। आमीन। दुनिया को पता चल जाएगा, शोर उठेगा, वर्शिप उठेगी, और ईमानदार मैं और आप लिखे आसमान पर उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। लिहाजा हमें अपने को तैयार करना है, हिकमत बढ़ जाए, हिकमत अफजू हो, इल्म हासिल करें, कलाम को सुने, ताकि आने वाले गजब से बच जाए, आने वाली झूठी तलीमात से बच जाए, और खुदावन में मजबूत होकर खुदावन की इबादत कर सके। खुदावन इस कलाम की वजह से मुझे और आपको बहुत बड़ी बरकत है। आमीन। शुक्रिया। आप सर को झुकाएंगे दुआ।